लास्ट वीक जो हमने कॉन्सेप्ट किया था, द सेम कॉन्सेप्ट जस्ट see here what is given in this. Just go with this definition. If pxy be any point on standard unit circle such that OP makes an angle theta degree with positive direction of x-axis, then what we define, जो डेफिनेशन हमने लास्ट टाइम देखे थे जस्ट रिवाइज कर लेते हैं. साइन थीटा मतलब y कोऑर्डिनेट, cos means x, tan means y by x, cosec is 1 upon y, sec is 1 upon x, and cot theta is x upon y. As well as we discussed about this also in the last lecture. First quadrant, all are positive, therefore we write A. Second quadrant, x is negative, y positive, therefore sine and cosec will be positive, and all other remaining trigonometric ratios are negative. In third quadrant, x and y both negative, therefore tan will be positive and cot also will be positive. In the fourth quadrant, x is positive, y is negative, therefore x means cos and sec positive. So like this we discuss, and this is the all ASTC का meaning, as well as this is a complete circle, complete rotation. So 0 to 90 first quadrant, 90 to 180 second quadrant, 180 to like this 270 the third. So it is completely rotating 270, 360, 360, 450 like this 90 degree का quadrant होता है. एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो पॉजिटिव. सो 1 2 3 4 like this 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, just go on rotating, and we go in the clockwise, it will be negative, so माइनस यहाँ से होगा 0 से -90, -90 से 180, सो 4 3 2 1 4 3 2 1. नेगेटिव के लिए अपन 4 3 2 1 इस ऑर्डर में जाएंगे. सो आगे का पार्ट अभी आज कर लेते हैं. सी दिस 3 सम्स. आपको सिर्फ इसका साइन बताना है. क्वाड्रेंट देखो और उसका साइन बताओ फटाफट करो. Just do this and reply me in chat box once you are done. बच्चों किया आपने सब? Please reply in the chat box. तो डायरेक्टली बोले तो भी चलेगा, माइक पे रिप्लाई करो. आप मुझे सुन पा रहे हो ना? हेलो. हाँ. ओके फाइन. Positive, negative. That is the answer given by Jitendra Patel. Amay Doshi says positive, negative. Farooq ji ने भी बोला प्लस माइनस. ओके. सो क्या होगा ये? दिस इज इन विच क्वाड्रेंट है? 380 कौन से क्वाड्रेंट पे है? What is the quadrant of 380? हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट इसका आंसर क्या आना चाहिए? फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर positive. So answer for this is positive. It's very simple. What about the second one? 230 degree.
230 in the third, 180 से लेके this also positive. This tan and cot are positive. What about sec? 468. Negative. Second quadrant. 468. Look at this. This is the table we have done here. So according to that, 450 to 540 goes in second quadrant. That's why this याद रखना है चार्ट. समझा? So that goes in the second quadrant. Second quadrant में sec will be negative. Sec is negative ना second में. Sin और cosine positive होता है. So this is the answer for this sum. So answer is plus, plus and minus. Look at that. ये टेबल तो आपको आता रहेगा, बराबर ना? आपको अच्छे से मालूम है, मतलब इधर भी ये टेबल आपका पीछे छोड़ने वाला नहीं है. In this case, you have to just remember the radian वाला angle also. 360 0, that is radian and degree both are 0. 30 degree मतलब pi by 6, 45 मतलब pi by 4, 60 मतलब pi by 3, 90 मतलब pi by 2, 180 मतलब pi, 270 मतलब 3 pi by 2. ये 3 extra दिया है, 3 pi by 2. So these are the value of sin and cos. because sin cos मालूम है तो tan मिलेगा. तो सबका रेसिप्रोकल करने के बाद all trigonometric functions we can find. Even we can find the multiple of 30 and 45. लास्ट लेक्चर में मैंने बताया आपको कैसे करना है, बराबर, डायरेक्टली by drawing that circle and we can find that. So now आगे बढ़ते हैं. इसमें very simple question है. This is from your textbook order. So टेक्स्ट बुक से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप जरा सॉल्व कीजिए इसको. इसका सॉल्यूशन का डायरेक्ट मिलेगा, दैट इज द प्रॉब्लम, इसलिए यही बेटर है. वी सॉल्व दिस. यस किया सम सॉल्व. आई थिंक ऑलरेडी मैंने क्लियर कर दिया है. So root 2 upon 2, that's the answer. Basil say this. Already मैंने इधर root 2 upon 2 कैसे होगा root 2 upon? It is sin 30 is 1 upon 2, cos 45 is 1 upon root 2, and tan 1 it is 0. ये आंसर होना चाहिए ना बच्चों? Yes, sir. This is 1 upon 2, 1 upon root 2. So you have to multiply with root 2 in the numerator, root 2 in the denominator to make LCM as 2. So they become 1 plus root 2 upon 2. So this is the answer. Right? So you have done some mistake there. आगे वाला सम, one more sum. Do this. So cosec 45. Sir, बोलो बेटा. sir, I didn't understood the previous sum. Previous sum नहीं समझा. So this. इसमें directly from the table वाला मैंने स्लाइड पहला निकाल लेता हूँ. sin 30 degree sin 30 is 1.2 is of cos root 3 by 2 45 1 upon root 2 1 upon 2. ये टेबल आपको अच्छे से याद रखना है.
So using this, sin 30 का वैल्यू है 1/2, cos 45 का वैल्यू है 1/√2. हेलो, हाँ यस सर, समझ रहा हूँ। एंड tan 180 का वैल्यू है 0. इसके बाद वाला नहीं समझा रहेगा तो 1/√2, 1/√2 का मीनिंग क्या होता है? इज 1/√2 मीन्स आपको इधर 2 एलसीएम लेना है, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई विद √2 इन द न्यूमरेटर and √2 in the denominator. Fine. So √2 into √2 क्या हो जाएगा? It is 2. √2 upon 2. तो ऊपर जो बन रहा है वो क्या है? √2. तो बेसिकली 1/√2 का मतलब होता है √2/2. ये इधर 1/√2 का मतलब होता है √2/2. आई बात समझ में? So why I have written like this? Because दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो सिंपली इट इज 1 plus √2/2 and that's the answer. समझा बच्चा? कौन था जो डाउट? यस समझ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चा किसने डाउट पूछा था? सर मैंने अब्दुल्ला। है, समझ में आया? हाँ सर आ गया। Someone asked me the doubt. हेलो, हेलो आ गया सर। हाँ समझ में आया बेटा? हाँ ओके फाइन। दो नेक्स्ट सम में इट शुड बी कोसेक यार, सीख रहेगा। कोसेक 45, cot 45। कोसेक 45 का वैल्यू है √2, cot 45 का वैल्यू 1, tan is 0, so answer is √2 plus 1. That's it. बराबर है? Reply in the chat. हाँ सर। Yes, sir. Okay, this is very easy. Solve this. सब टेबल का प्रैक्टिस के लिए है। बेटा आपको टेबल फटाफट आना चाहिए। सर हाउ मच इज tan 360? tan 360 कितना है? 0। tan 360 0, therefore सब कुछ 0 होता है। वही तो इम्पोर्टेंट बात था उसमें। तो tan 1 is 0, so everything is 0. सर आंसर अच्छा 0। हाँ ये 0 multiplied by anything is 1/2√2 multiply by 0 is equal to 0। बराबर, तो the answer is 0 here. ठीक है? It's very easy question. Now the next concept, see on the board. क्या दिया है? चेक करो कि अगर अभी हमको एंगल नहीं दिया है, so angle is not given. What is given here? कोई एक पॉइंट दिया है। The question is how to find trigonometric function of angle in standard position whose terminal arm passes through xy. Concept exactly similar to the standard unit circle ही है, but circle is not a standard circle. Standard unit circle नहीं, it is a standard circle, but not a unit circle. इसमें सर्कल जो है वो यूनिट सर्कल नहीं है, मतलब रेडियस इज नॉट 1. इसका रेडियस क्या है? 1 नहीं है। आई बात समझ में? सो हाउ टू डू दिस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेक बेटा कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, वो बार बार अंदर बाहर हो रहा है।
ठीक है, नाउ सी हियर, इसमें क्या है कि we have taken any point, P is any point on the circle. It is not a standard, sorry, unit circle. It is a standard circle, but not a unit circle. Standard मतलब center is at origin, but radius is not one here. So we assume radius is r. So ये जो हमने किया लास्ट टाइम किया था वही, PM perpendicular on x. This is x, this is y, and let this is r. So Pythagoras theorem से r का वैल्यू मिलेगा रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बस इतना ही आपको याद रखना है, मतलब जो 1 होता था वो इधर r है। सो योर डेफिनेशन विल बी, इसमें डेफिनेशन क्या हो जाएंगे, दिस इज द डेफिनेशन हियर, दैट इज sin theta is y upon r, cos theta is x upon r, tan theta is y by x, cosec is r upon y, sec theta is r upon x, and cot theta is x upon y। आई बात समझ में बच्चों? हाँ। Yes, sir. So using now this concept, there is a question. Find all trigonometric function of angles in a standard position. The terminal arm passes through 3, -4. So try to solve this. आपको ये प्रीवियस स्लाइड वाला डेफिनेशन यूज करना है, ये वाला आपको r ढूंढना है, r is under root of x square plus y square, and then use this all sin cos tan के लिए। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, मतलब अभी सम सॉल्व करने के लिए स्क्रीनशॉट लेके रखो तो ये सॉल्व इजीली फटाफट। चलो, दिस इज अ क्वेश्चन, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। So this is a definition। आगे ये आपका क्वेश्चन है, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एंगल इन द स्टैंडर्ड पोजीशन। तो हमने क्या किया, लेट थीटा बी द एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन व्हिच टर्मिनल आर्म passes through 3, -4. Now 3, -4 will come in which quadrant? It will be in fourth quadrant. X is positive, y is negative. So that is in the fourth quadrant. ये इसका डायग्राम है। So the question is, what is the trigonometric function of this angle? पूरा एंगल थीटा ऐसा होगा, तो वही बात लिखनी है, and then you have to find r. So what is x? X is 3, y is -4. So r is under root of x square plus y square, that gives you r equal to 5। बराबर है, r का वैल्यू 5 है। So by definition सीधा sin theta is y upon r, y coordinate is -4, r is 5, cos theta is x upon r, tan theta is y upon x, cosec is reciprocal of sin, sec is reciprocal of cos, and cot is reciprocal of tan. That's the answer। आई बात समझ में सबको? मतलब समझा? नीरव कौन पूछ रहा था डाउट? बेटा समझा क्या? हाँ सर, समझा। चलो एक बार फॉर्मूला बताओ ना। कौन सा फॉर्मूला? ये r इज इक्वल टू का पीछे वाला स्लाइड।
This is very simple ना. This is पीछे वाला मतलब इसके भी पीछे वाला चाहिए. If this is there, मतलब ये तो P अभी फोर्थ क्वाड्रेंट में आया इसलिए मैंने वो डायग्राम ऐसे बनाया. In generally P can be anywhere, so X, Y and R is a hypotenuse. That's it. R is a hypotenuse. Previous जो हमने लास्ट लेक्चर में किए थे उसमें R1 होता है. It is a unit circle, standard unit circle. Now in this case it is R is under root of x square plus y square, so you have to solve it. समझा भाई? Yes, sir. तो now move to the next concept now. That is identity. That trigonometric identity ये भी आपको अच्छे से आता रहेगा. Yes, sir. Sin square plus cos square is 1. 1 plus tan square is sec square theta. And 1 plus cos square theta is equal to cosec square theta. Alright? Now, there is a question. Try to कर सकते हो. If cos theta is given as 12 upon 13 and theta lies in between 0 to pi by 2. That is in first quadrant. Theta lies in first quadrant. The question is find the value of sin square theta minus cos square theta upon 2 sin theta cos theta. See that? Can you solve that? If you can try. And just reply once you're done. Yes, so see here. Cos theta is 12 upon 13 given, and we know that sin square plus cos square is 1. Sin square theta is equals to 1 minus cos square theta. अभी हमने इसमें cos का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया. cos का वैल्यू क्या दिया है? 12 upon 13. So that is substituted here. And then we solve it for sin. So 12 upon 13, 144 upon 169. 169 इधर मल्टीप्लाई होगा. 169 minus 144 upon 169. That is 25 upon 169. Means sin theta का वैल्यू आ सकता है प्लस और माइनस पाई अपॉन 13. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आइडेंटिटी यूज करके आपको जो भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है, देयर आर 6 आइडेंटिटी और हर आइडेंटिटी में पेयर है. पहले आइडेंटिटी में क्या है? साइन और कॉस का पेयर है. दूसरे में tan और sec. तीसरे में cot और cosec. साइन या कॉस दिया है तो विल यूज द फर्स्ट. tan या sec में से कोई दिया है तो विल यूज द सेकंड आइडेंटिटी. एंड cot और cosec में से कोई दिया है तो विल यूज थर्ड आइडेंटिटी. So here we use the first one and find the value of sin theta. Now sin theta का अंदर प्लस और माइनस है, तो प्लस माइनस you have to decide according to the this given condition. So the condition जो दिया है वो क्या दिया है? Theta lies in 0 to pi by 2. 0 to pi by 2 का मतलब क्या है? What is the meaning of 0 to pi by 2? 0 to pi by 2 means it's in the first quadrant. First quadrant means sin theta is plus 5 by 30. sin theta plus आएगा, substitute करो, pi by 13 the square minus 12 by 13 square and just simplify it. The value is 25 upon 169 minus 144 upon 169. 2 into 5 10, so 120 upon 169. Subtract here, 169 cancel, and the answer is this.
That's the answer. आई बात समझ में? So reply this in the chat. चैट में रिप्लाई करो, समझ में आया तो, नहीं आया तो रिपीट करने के लिए बोलो, बट रिप्लाई में आवाज आ रहा है ना सबको? सर बोलो बेटा। सर वो अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे डिसाइड किया, वो समझ में नहीं आया। दिया है ना, थीटा लाइज इन 0 to पाई बाय 2। तो उसमें फर्स्ट देखो क्वाड्रेंट वापस कैसे डिसाइड किया? वापस देख लो सब बच्चों, क्वेश्चन ही पूरा वापस से समझा देता हूँ, बिकॉज एक आध जन ने भी पूछा है, रिपीट इट, रिपीट करने को बोला है, सो वी रिपीट इट। अरे यार कैसे बटन दबा, मुझे दबाना था इरेज। Here, cos theta is given as, क्या हो गया परसों? हाँ, cos theta is given as 12 upon 13. Now what is this? इसका मीनिंग क्या है? साथ में दिया है कि थीटा इज इन बिटवीन 0 to पाई बाय 2. What is the meaning of this? It's very important है, सम के साथ जुड़ा हुआ है, 0 to पाई बाय 2. 0 to पाई बाय 2 के बीच मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? इसलिए मैंने आपको बोला था, जो भी मैं बोल रहा हूं, look at this, किधर गया? This one, ये मैंने आपको बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से आएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये देखो इधर, you have to remember this table. 0 to 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और 90 मतलब पाई बाय 2। सो आप उसको रेडियन में भी याद रखो, 0 to पाई बाय 2, पाई बाय 2 to पाई, मतलब 90 to 180, like this. So when this is there, so either clearly mention है कि that is in first quadrant. आई बात समझ में? यस सर। समझा क्या? हाँ सर। हाँ, okay, so we are there in this slide. यही है ना अपना? नहीं। Yes, here. So using this, इसमें आप वैल्यू डालो cos स्क्वायर का, sin स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो cos का वैल्यू क्या दिया है? 12 upon 13 is given to you, बराबर? तो 12 upon 13 का स्क्वायर क्या होता है? 144 upon 169, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 169 माइनस 144 अपॉन 169, दैट इज 25 अपॉन 169, तो प्लस माइनस आएगा। अब इसमें प्लस लेना है कि माइनस लेना है, इसलिए क्वाड्रेंट, बाकी इसका कुछ यूज नहीं है। आई बात समझ में? इसका यूज सिर्फ आपको प्लस साइन है कि माइनस है। नाउ इट इज क्लियरली मेंशन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट होने के कारण इट इज, मतलब एंगल कौन से है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट डिसाइड करता है। तो sin theta is pi by 13, सर and then put the value of that, that is and simplifies 5 by 13 का स्क्वायर, 12 by 13 का स्क्वायर, and
देन दिस सिंप्लीफाई करके आंसर निकालो, दैट्स द आंसर। यस, बोलो किसको डाउट है? जिन से जरा समझा आपको? सर समझा सर हाँ, समझा। समझा। ओके फाइन। सो सिमिलर क्वेश्चन है, मतलब एक्चुअली वो तो सेम नहीं है। उसका सेकंड पार्ट था, यूज द सेम वैल्यू ऑफ साइन एंड कॉस एंड फाइंड द 1 अपॉन tan स्क्वायर। सो 1 अपॉन tan स्क्वायर ढूंढने को बोला है। यस, अमय जी ने सॉल्यूशन भेजा था मुझे। cos थीटा इज 12 अपॉन 13। वही बात, मतलब वो तो आप करो ही मत, वो तो मैंने जो किया था यहाँ तक आपका सेम रहने वाला है, यहाँ तक सॉरी। उसके बाद आपको tan ढूंढना है एंड देन फाइंड द वैल्यू, दैट्स वेरी इजी वन। सर आंसर 144 अपॉन 25। यस, बराबर है, राइट। 1 अपॉन 144 अपॉन 25, एकदम परफेक्ट। ऑन द स्क्रीन भी मैंने कर दिया है सेम क्वेश्चन, सिर्फ tan थीटा ढूंढना था। तो समझ में आया ना प्लस माइनस कैसे लेना है? ऑर्डर के हिसाब से आपको प्लस माइनस लेना है, इसके ऊपर के कुछ सम और करेंगे। सर कैसे आया नहीं समझ में? कौन सा बेटा? यही यही सब नहीं समझे? वो तो सेम ही था, वो तो साइन कॉस तो सेम ही था ना, उसका ही आगे का सेकंड पार्ट है, उसके ही आगे का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट दिया है, गलती से मैंने सेकंड नंबर भी नहीं किया इधर। ये देखो cos थीटा गिवन है, यहां तक तो सेम है ना, तो प्लस और माइनस में से प्लस लेना है कि माइनस लेना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट तो प्लस, तो tan थीटा क्या होता है? व्हाट इज tan थीटा? tan थीटा इज साइन अपॉन कॉस। समझ गया तो साइन का वैल्यू डालो 5/13, 12 एंड कॉस का वैल्यू डालो 12/13, 13 कैंसिल, so it's 5/12, tan थीटा इज 5/12। और आपको क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। तो tan इज 5/12 का स्क्वायर, मतलब 25 अपॉन 144, दैट इज ऊपर जाएगा तो 144 अपॉन 25, बराबर है? नीरव समझा? यस, योर आंसर इज राइट नितिश जी। नहीं कर सो यार ध्यान, योर आंसर इज राइट। समय का क्या होगा बेटा? 5/13 is on the answer of मैंने रॉन्ग तरीके से किया था। ओके फाइन। समझा बच्चा? 144 अपॉन 25, so this is the answer। सिंपल है ये फटाफट करो, चलो टेबल से करना है, टेबल भी दो बाजू में दे दिया, चलो विद टेबल आल्सो गिवन, सो ये तो सॉल्व करना ही करना है, सबको आना चाहिए। दिस इज वेरी बेसिक्स बातें हैं, आई डोंट वांट टू रश इन द सिलेबस बिकॉज आपका कॉलेज चालू नहीं, कुछ नहीं, अभी थोड़ा धीरे धीरे जाते हैं।
देखो using the trigonometric table you evaluate. Yes, good to know. सर आंसर 5 आया. आंसर है 5. आई कैसे आएगा? कॉट 45 का वैल्यू क्या है? सर आंसर 1/2 है. बराबर 1/2 इज द करेक्ट आंसर. 1/2 1/4 नहीं. अमर जी ने आंसर दिया है 1/2. हाँ, दैट इज 1/2 है. करेक्ट. देखो दिस टेबल बाजू में सब बाजू में कॉट 45 का वैल्यू 1. सेक 60 का वैल्यू कितना? 60. कॉस कॉस 60 इज 1/2. तो उसका रेसिप्रोकल मतलब 2 बराबर 2 स्क्वायर. 4 माइनस 4 कैंसल. अरे इधर 1 ने लिखा. तो 4 माइनस 4 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/2. सर लेकिन पहले प्लस Fine. करते थे फिर माइनस ना. क्या? पहले प्लस करने का बाद में माइनस करने का ना. कौन सा बेटा? सर मतलब नॉर्मली जब भी करते हैं तो पहले प्लस को ज्यादा प्लस अगर हो रहा हो तो पहले प्लस करने हाँ का तो बाद. भी तो भी वही आएगा ना. ओके. तो, मतलब आप क्या बोलना चाहते हो? 4 प्लस 1/2 करोगे. 4 प्लस 1/2 करोगे तो कितना आएगा? 8 इट इज प्लस 9. 1/2 9 अपॉन 9 2 हाँ 9/2 माइनस 4. -4 -5 क्या 9 माइनस 8 होगा ना? 4 के नीचे कुछ नहीं है. हाँ तो सर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना. देख मल्टीप्लाई नहीं माइनस है. हाँ. माइनस है साइन देखो बच्चा क्या है. बीच में माइनस. इट इज 4 माइनस 4 प्लस 1/2. इट इज सर 4 माइनस वेरी 3.5. वेरी सिंपल. 4 माइनस 4.5 कैसे है? माइनस -1/2 आएगा तो. अरे कॉट 45 का 1 बराबर. हाँ. सेक 60 का वैल्यू क्या है? कॉस 60 का वैल्यू है 1/2. तो सेक 60 का वैल्यू कितना? बोलो. 2 इट 2 इज 2 ना. हाँ तो सेक तो सेक स्क्वायर 60 का मतलब क्या होता है? उल्टा इट इज मतलब 2 का. इट इज 2 स्क्वायर. 2 स्क्वायर वेरी सिंपल. और साइन 30 मतलब 1/2 1 अपॉन. हाँ तो 4 का 4 इंटू 1 4 4. 2 का स्क्वायर 4. और ये 1/2. 4 और 4 कैंसिल. आंसर इज क्या? हाँ सर समझा. तो सिंपल है ना. इनटू नहीं था. इट इज सिंपली प्लस माइनस. ओके जी. चैतन्य जी कशिश और एक सम टेबल से. चलो एक और सम ले लो. अब इट इज गिवन इन द रेडियन. तो टेबल वापस दे देता हूँ. रेडियन देखो बाजू में रेडियन पे दिया है टेबल में. दिस इज द रेडियन वैल्यूज.
These are the radian values. Pi by 6, pi by 4, pi by 3, pi by 2, pi. इधर है थोड़ा गड़बड़ है बस. फेसबुक का पिक्चर में भी गड़बड़. That is 3 pi by 2. So the question is solve this. Find the value. फटाफट करो. सर ये cos स्क्वायर 0 डिग्री है क्या cos स्क्वायर थीटा है? Cos square 0 degree. 0 degree. It is cos square 0 degree plus cos square pi by 6 plus cos square pi by 3 plus cos square pi by 2. Pi by 2. फिगर 1 का फर्स्ट एक्सरसाइज आज खत्म हो जाएगा. फिगर 1 का फर्स्ट एक्सरसाइज आज खत्म हो जाएगा. Three more slides are there. बीस स्लाइड तक जाते हैं अपन एक लेक्चर में. Yes, from the table, cos 0 is सर आंसर क्या है? 2. आंसर आया बराबर है. Answer is 2. Amajin 2. Harsh also 2. Chaitanya, right. और आंसर is 2. उन्होंने बोला ना 2. देखो ना चैट बॉक्स में. That's right answer. See this. Cos 0 is 1. तो 1 का स्क्वायर. Cos pi by 6. Pi by 6 मतलब 30 डिग्री. उसका cos √3 by 2. √3 by 2 का स्क्वायर. Cos pi by 3. That is cos 60 is half. Half का स्क्वायर. Cos 90. That is cos pi by 2, which is 0. Like this. So the next is 1 as it is. 3 plus 3 by 4 plus 1 by 4 plus 0. The 3 plus 1 इधर दोनों का LCM सेम है तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हो. इस 4/4 4/4 मतलब 1 और ये ऑलरेडी 1 है तो 1 plus 1 is 2. That's the answer. आई बात समझ में? चलो बोलो भाई. यस सर. रिप्लाई में Yes, समझा sir. ना? हाँ. हाँ सर. Okay. This is the last question which I am going to explain and the rest you have to solve as a homework. तो explain कर देता हूँ मैं. It is similar to that a previous question जिसमें cos थीटा दिया था और आपको sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर अपॉन 2 sin cos का वैल्यू फाइंड करने को बोला था. तो इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट. उसी तरह है पर इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है फाइंड. इसमें बोला है कि फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. सारे के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको ढूंढने को बोले हैं. इफ sec a is equal to -25/7 and a lies in the second quadrant. देखो sec a का वैल्यू क्या है? -25/7 it is given as well as a lies in the which quadrant given?
सेकंड क्वाड्रेंट। इस टाइप का सम कैसे करना है वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। यू हैव टू यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करना है। अभी सेक है तो सेक वाला आइडेंटिटी यूज होगा। तो सेक और tan की जोड़ी है, तो दैट इज सेकंड आइडेंटिटी वी हैव टू यूज। वी हैव टू यूज वन second identity 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, and therefore tan square theta is sec square theta minus 1. इधर थीटा के बदले a दिया है, तो tan square a is equal to what? sec square a minus 1. tan square a is equal to what? sec square a minus 1. Put the value of sec square a. Sec square a का value minus 25 by 7. minus 25 by 7 का स्क्वायर करोगे, so what is that? minus 25 by 7 का स्क्वायर करोगे तो it is 625 upon 49. 49 इधर मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम लेंगे इधर। 625 minus 49 upon 49, subtraction will give you 576. so square root लेने के बाद tan a will be what? plus minus 24 upon 7. tan a का वैल्यू क्या आ रहा है? प्लस माइनस 24 अपॉन 7, बट क्लियरली मेंशन है कि a lies in which quadrant here? a lies in second quadrant. so second quadrant है तो कौन सा लोगे आप वैल्यू इसमें से, प्लस या माइनस? माइनस। which value will take here? माइनस। a lies in the second quadrant, so it is tan will be what? tan will be negative। सेकंड क्वाड्रेंट में s मतलब साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, tan will be what? negative। so a lies in the second quadrant, therefore tan a is minus 24 upon 7, and that gives you tan a दिया है तो tan का रेसिप्रोकल आ गया cot, sec दिया है तो sec का रेसिप्रोकल आ गया cos। ये तो सीधा हमने फाइंड किया। Now we have to find sin, तो sin कैसे फाइंड करोगे? tan a is sin upon cos। हमारे पास cos मौजूद है तो sin का वैल्यू क्या आएगा? ये मल्टीप्लाई होगा। sin a is equal to what? sin a is equal to tan a into cos a। tan a का वैल्यू यहाँ से minus 24 upon 7, this is the tan a value, and cos का वैल्यू यहाँ से minus 7 upon 25, 7 cut, minus minus become plus, so that is there 24 upon 25, that is the value of sin a। sin a का वैल्यू क्या आएगा? 24 upon 25, and therefore the cosec a reciprocal of that, so cosec a का वैल्यू आएगा 25 upon 24, and that's the answer। sin a cos cosec a, cos a sec a, tan a and cot a। आई बात समझ में? Yes, reply in the chat please। Yes. If you understood, please reply in the chat। ओके फाइन, सबको समझ में आया। सो दैट्स इट, दैट्स एक्सरसाइज सेकंड। अपना पहला जो एक्सरसाइज है, जो पहला एक्सरसाइज है वो ट्रिगो का खत्म हो रहा है इधर। सो ये सम जो है, मतलब ये मैंने सेकंड वाला सम इधर किया, आई हैव डन दिस। ये सेकंड वाला सम मैंने इधर किया है, जो अभी किया, a lies in the second quadrant। so find the other trigonometric function। this is the last question number 9 है 2.1 का, and that's exercise खत्म हो रहा है। तो अभी लास्ट के 5 मिनट में हम उसको दूसरा एक्सरसाइज चालू कर रहे हैं। तो 3 सम आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, अभी भी क्लास में चालू सॉल्व कर सकते हैं।